mechanics, which includes the particle distribution. First is particle distribution size. Okay, wait a minute, एक minute, एक particle size distribution. Okay, while we dealing with the soil mechanics, or while we dealing with the different properties of the soil, of especially silt and clay soil, we need to analyze that soil according to their size. Okay, that's according to their size. For such a measurement or such a technique, we need to go for particle size distribution of the सॉइल पार्टिकल. ओके, क्या होता है कि हमें सॉइल पार्टिकल्स मतलब कोई भी स्ट्रक्चर आपको डिजाइन करना हो या उसके लिए हमें सॉइल की प्रॉपर्टीज जो चेक करनी पड़ती है, तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, वहाँ का सॉइल टाइप कौन सा है, कोई भी एरिया हो जहाँ पे हमें स्ट्रक्चर डिजाइन करना है, तो वहाँ का सॉइल टाइप किस तरह का है वो हमें डिफाइन करना पड़ता है. उसका पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है वो हमें क्या करना पड़ता है, कैरेक्टरिस्टिक्स पे स्टडी करनी पड़ती है. उसके बाद हम क्या जाएंगे, फाइनल डिसीजन पे जाएंगे. तो देयर आर जनरली द पार्टिकल साइज इज गिवन the percentage of various size of the particle in a dry soil sample is found to be a particle size analysis or mechanical analysis. मतलब कि जो भी ड्राई सॉइल होगी, ओवन ड्राई सॉइल होगी, ओके, जो भी ड्राई सॉइल होगी उसमें पार्टिकल साइज का डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज कितना है. ओके, हाउ मच परसेंटेज क्ले इज देयर, हाउ मच परसेंटेज सिल्ट इज देयर, how much percentage silt is there, sand is there. Sand silt का तो कोई problem नहीं आता, but this too much is important. Okay, or and how much percentage fine soil is there, so that should be analyzed by using the particle size analysis or by using mechanical analysis. Okay, so mechanical analysis is meant to separation of soil particle into different size fractions. मैकेनिकल सेपरेशन में क्या होता है, डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑफ सॉइल्स आर देयर. ओके, 4 mm, मोर देन 4 mm, 3 mm, 2 mm पॉइंट फाइनल सॉइल. तो उसका एक सीव्स एनालिसिस, विद द हेल्प ऑफ सीव एनालिसिस वी कैन गो फॉर मैकेनिकल एनालिसिस ऑफ द soil. And also the mechanical analysis performed at us 2 stages or in a 2 stages. First is sieve analysis, another is the sedimentation analysis or wet mechanical analysis. इसमें दो चीजें, दो तरह से एनालिसिस करते हैं, sieve analysis करते हैं और sedimentation analysis करते हैं. Okay, so these are the different 2 techniques that are used, that is particle size distribution and mechanical. Generally mechanical size sieve analysis distribution किया जाता है. तो उसमें क्या होता है, देखो अभी these are the grain size analysis. Okay, ये जो size है, this is the size that is very, that is the that is what, that is fine soil. Okay, उसके बाद ये coarser है और ये ग्रैन्युलर सॉइल है. तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सॉइल का क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस डिफरेंट वेरिएबल टेक्निक्स. सो इसमें ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सीव एनालिसिस पर सेडिमेंटेशन एनालिसिस. सीव एनालिसिस किसमें से करता है, किया जाता है, जो भी सॉइल पार्टिकल होगा उसमें से. ओके, जो भी सॉइल होगा उसमें से. और सेडिमेंटेशन एनालिसिस किस तरह से किया जाता है, व्हाटएवर सॉइल गेट डिपॉजिटेड अप एट द अपर. ओके, यहाँ पे मतलब जो भी कैनल होगा और जो भी डैम होगा वहाँ पे जो भी सेडिमेंट होगा उसका भी हम क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा. तो उसके लिए हमें क्या टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, सेडिमेंट एनालिसिस के लिए हमें जाना पड़ेगा. उसके बाद देखिए सॉइल कंसिस्ट ऑफ 3 phases और 3 important parameters. Okay, that is permeability, means how much it allow to permeate the water. Then shear strength. Okay, this shear strength means what, there is chance of shear strength. shear strength क्या होता है कि सॉइल मतलब कितना एक्सपांड हो सकती है. और compressibility मतलब how that soil get compressed. Okay, so these are the 3 things that we have to consider in a mechanical analysis of the soil. Here these are the coarser grains. Okay, these are the, up to this coarser grains are there, and up to this, from this size to this size, that is what, 0.75 mm, that is 75 microns. Up to 75 microns, this is the limit. Okay, if the soil size is less than 75 microns, so it will be considered as a fine grain, and if it is greater than the 75 microns, so it will be considered as a coarser grain soil. Okay, it will be considered as a coarser grain soil. So this classification is useful for us to determine the different grain size. Okay, so now mechanical analysis is done in a first stage, mean for coarser grain soil, while the
second stage is performed for fine grain soil. Okay, मैकेनिकल एनालिसिस दो चीजों में किया जाता है. पहला होता है तुम्हारा कोर्सर ग्रेन सॉइल, इस तरह से एक कोर्सर ग्रेन सॉइल के लिए एनालिसिस करते हैं, और उसके बाद हम जाते हैं फाइन ग्रेन सॉइल के लिए. तो फिर इसमें क्या होता है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ द मैकेनिकल एनालिसिस इज टू मीन फॉर coarser grain soil while the second is for to fine grain soil. Okay, so in general soil samples may contain both coarser grain particle as well as fine grain particle. मतलब जो भी soil sample होगा उसमें दोनों particles होते हैं, fine और coarser soil particle. Hence both the stages of mechanical analysis may be necessary. That's why it is necessary. Sieve analysis is however true representative of the grain size distribution since the test is not affected by temperature. Okay, in a sieve analysis there is no temperature use. Okay, sieve analysis आपको पता ही होगा किस तरह से sieve analysis किया जाता है, उसका आगे हम डायग्राम देखेंगे किस तरह से sieve analysis किया जाता है. तो ये ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होता है, इसमें सॉइल पार्टिकल साइज प्रॉपर्ली हमें मिलता है, डिस्ट्रीब्यूशन उसका प्रॉपर मिल जाता है. ओके, तो इसमें टेम्परेचर का कोई रोल नहीं होता. तो ग्रेन साइज एनालिसिस इंक्लूड sieve analysis and sedimentation analysis. Now sieve analysis में क्या होता है, in a sieve analysis BS and ASTM standard. Okay, BS standards or ASTM standards, the sieve size are given in terms of number of openings per inch. Okay, अभी क्या होता है sieve analysis में क्या होता है, number of openings per inch, मतलब 1 inch में how much openings are there, in a 1 inch how much openings are there, so that represents the sieve analysis. The number of opening per square inch is equal to the square of the number of the sieves. Okay, मतलब जो भी opening है, for example suppose this is one sieve. Okay, ये एक sieve है, तो इसमें 1 इंच स्क्वायर में कितनी ओपनिंग्स है वो इक्वल होती है स्क्वायर ऑफ द sieve नंबर. ओके, स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ sieves, कितने sieves है उसके स्क्वायर पे डिपेंड होती है. Okay, and in Indian standard, that is IS 460192, the sieves are designated by the size of the aperture in mm. Okay, size कहाँ पे distribute करते हैं हम, इसमें mm में distribute होती है. Okay, and table gives the different openings. तो ये होता है sieve analysis. ठीक है, तो ये क्या है sieve analysis. It indicate that soil from 80, अगर साइल का ग्रेन डायमीटर 80 mm है तो 80 mm वाले डायमीटर यहाँ पे सॉइल पार्टिकल यहाँ पे होंगे, 40 mm है तो 40 वाले यहाँ पे होंगे, 20 है तो 20 वाले यहाँ पे होंगे. ठीक है, 10 है तो 10 वाले यहाँ पे होंगे, और 4.75 हो गए तो सारे ग्रेन पार्टिकल यहाँ पे आपके एक्वायर्ड हो गए. तो ये सिव होते हैं. इस तरह से सिव को क्या करते हैं हम लोग 1 by 1 स्टेप में अरेंज करते हैं. उसके बाद नीचे एक वाइब्रेटर होता है. ओके, वो वाइब्रेटर क्या करता है, वाइब्रेटिंग मोड पे हम रखते हैं उसको. वाइब्रेट करने के बाद वो उस पे से एनालिसिस करके देता है, सिव एनालिसिस करके देता है. तो दीज आर द डिफरेंट सिव्स. ओके, देखो यहाँ पे ये बात है, मतलब वहां पे सॉइल कलेक्ट होती है. यहाँ पे फाइन, ये फाइन वाला है और ये कोर्सर ग्रेन वाला है. तो हम इसको क्या करते हैं 1 by 1 स्टिक में अरेंज करके वाइब्रेटर जो होता है, मतलब सिव शेकर उसको बोलते हैं. ओके, वी कॉल इट एज द सिव शेकर. सिव शेकर पे हम रखते हैं और उसके बाद हम उसका सिव एनालिसिस करते हैं. उसके बाद ये जो बीएस स्टैंडर्ड है, मतलब हर एक इसका स्टैंडर्ड है, मतलब डेजिग्नेशन 50 mm साइज हो तो अपर्चर कितना होना चाहिए, 40 mm हो तो अपर्चर कितना होना चाहिए, एज पर द बीएस सीव्स, ASTM सीव्स एंड IS सीव्स. ओके, इंडियन स्टैंडर्ड सीव्स, बीएस स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसका ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स के सीव्स और ASTM सीव्स के डिफरेंट सीव्स एनालिसिस के पैरामीटर्स, मतलब कौन से सीव में कितना साइज होना चाहिए, अपर्चर कितना होना चाहिए, यहाँ पे मेंशन किया गया है. The next is now in a complete sieve analysis can be divided into two parts, coarser analysis और fine grain analysis. हमने देखा. Okay, an oven dried sample is separated into two fractions. Okay, जो भी oven dry sample होता है उसमें हम two fractions में analysis करते हैं through its 4.75 micron IS mm IS. Okay, the portion of written on its plus 4.75 mm sieves is termed as a gravel fraction. Okay, इसमें क्या होता है, उसको बोलते हैं gravel section. जो भी
साइज होगी वो दैट इज ग्रेटर देन 4.75 mm होगी, तो वो होता है आपका व्हाट दैट इज ग्रेवल फ्रैक्शन, and it kept for a Coarser analysis. Okay, that is kept for the Coarser analysis. While the portion passing through it minus 4.75 mm, then is subjected as a fine sieve analysis. मतलब क्या होगा कि 4.75 it is the limit. Okay, 4.57 is the limit. If the soil particles is of less, मतलब इसके नीचे हुए तो ये होगा तुम्हारा फाइन एनालिसिस, और इससे ग्रेटर हुए, ओके इससे ग्रेटर हुए तो ये होगा दिस इज योर व्हाट कोर्सर एनालिसिस. Okay, the following sets of sieve are used for the coarser sieve analysis, that is IS 100 632012 and 4.75 mm, and for the sieve analysis of the fine soil the coarser particles are used at 2 mm, 10 mm, 600, 425, okay, then 300, 220 and 150 up to 75 micron IS. तो ये सीव्स क्या होते हैं, जनरली यूज की जाती है कब सीव एनालिसिस में. Here is the sieve is sieving is performed by arranging the various sieves one over the other in order to their mesh opening. The mesh opening, larger aperture sieves being kept at the top and the smallest aperture sieves at the bottom. Simple है, मतलब जो भी sieves हम एनालिसिस करेंगे, जो भी sieve एनालिसिस होगा और जो भी sieves होंगे अपर्चर, जो भी मतलब वो जो ट्रेस जो this one. Okay, these are what the first the maximum opening. Okay, जहाँ जिसकी ओपनिंग ज्यादा होगी तो वो हम उसको टॉप पे रखेंगे, we kept it as a top. Okay, और जिसका ओपनिंग स्मॉल होगा हम नीचे रखेंगे, उसको बॉटम में रखेंगे. And we a receiver kept at the bottom and cover it with the top of the whole assembly. Okay, whole assembly को हम क्या करेंगे, रिसीवर नीचे बॉटम में रखेंगे और जो उसका टॉप भी हम उसको पैक कर देंगे. The soil sample put on the top sieves and the whole assembly is fitted with the sieve shaking machine. Okay, sieve shaking machine होता है तो वो मशीन में हम क्या करेंगे, वो सारी sieves अरेंज कर देंगे. The amount of shaking depend upon the shape and number of particles. Okay, shaking के अमाउंट डिपेंड किस पे डिपेंड करती है, शेप और नंबर ऑफ पार्टिकल्स. At least 10 minutes of shaking is desirable for soil with small particles. Depend upon soil. Okay, soil का शेप किस तरह सा है और soil किस तरह की है उस पर डिपेंड करता है. तो मिनिमम अगर स्मॉल सॉइल पार्टिकल्स है तो आप मिनिमम हैव टू गो फॉर 10 मिनट शेकिंग ऑफ दैट. मतलब वाइब्रेटर आपको, वो जो sieve शेकिंग मशीन है वो मैकेनिकल भी होता है और मैनुअली भी होता है. ठीक है, तो मैनुअल वाइब्रेशन भी उसमें किया जाता है और मैकेनिकली, बट मैकेनिकली बहुत ज्यादा यूज होते हैं तो उसमें हम आरपीएम सेट कर सकते हैं कि उतने आरपीएम के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं, वो उसको रख सकते हैं, उसके बेसिस पे हम उसको उतना टाइम चला के एनालिसिस कर सकते हैं. द पोर्शन ऑफ द सॉइल सैंपल रिटन ऑन ईच सिव इज वेटेड. ओके, उसके बाद क्या करेगा, जो क्या करना है, जो भी सॉइल सैंपल रिटन किया है ईच सिव पे उसको हम क्या करेंगे, वेट करेंगे. ठीक है, उसको हम वेट करेंगे, उसका वेट करेंगे. ये देखो इस तरह से ये सिव designated by the larger and small size. Okay, larger sieves larger than the 4 sieves are designated by the size of opening of the sieves and smaller sieves are numbered according to their number of openings per inch. मतलब क्या, 1 इंच में कितनी ओपनिंग है. ओके, 1 इंच में कितनी ओपनिंग्स है तो उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, सीव की साइज डिटरमाइन करते हैं. तो हियर आर सम दैट हियर आर द ग्रेवल फ्रैक्शन के लिए अलग सीव्स होते हैं और सैंड फ्रैक्शन के लिए अलग सीव्स होते हैं. ओके, यहाँ पे भी ओपनिंग अलग अलग होती है इसमें. तो कोर्सर ग्रेन सॉइल क्या होती है, जिसका मतलब ग्रेवल साइज मतलब ग्रेन साइज क्या होती है, ग्रेटर देन क्या होती है 475 mm होती है, और सैंड में क्या होती है, ग्रेन साइज होती है लेस देन 475 mm. देखो इस तरह से, मतलब 475 mm इज द लिस्ट, इज द रेंज. ओके, if it is greater than 4.5, so that becomes a gravel sand, and in the size of 4.75 is less than, so that becomes a sands. Okay, there are sand structures. Here are some sieves analysis are there, and this represents the arrangement of the soil particles in a different sieves. Okay, 75 micron होता है लिमिट
मतलब 75 माइक्रोन के ऊपर सारे जो सॉइल होते हैं, सॉइल पार्टिकल होते हैं, उससे ग्रेन, कोर्सर ग्रेन कंसीडर करते हैं, और नीचे जो होते हैं उसको हम क्या करते हैं, फाइन सॉइल पार्टिकल्स कंसीडर करते हैं। तो सिव एनालिसिस में कोर्सर ग्रेन सॉइल इस तरह से होती है, ये उसका सिव हो गया, सिव है। ओके, तो इस तरह से कोर्सर ग्रेन पार्टिकल्स आपको मिलेंगे सिव एनालिसिस के बाद। उसके बाद चलेंगे सेडिमेंट एनालिसिस। ओके, सेडिमेंट एनालिसिस में ही होता है कि फाइन ग्रेन सॉइल पार्टिकल्स जो है, फाइन वो उसको हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसका सेटलमेंट करते हैं। तो उसके लिए हम हाइड्रोमीटर मेथड और पेटिट मेथड यूज करते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट सेट्स ऑफ फाइन सीव्स। ओके, फाइन सीव्स जो हमने देखा था किस तरह से फाइन सीव्स यूज किए जाते हैं सॉइल एनालिसिस में और पार्टिकल साइज एनालिसिस में। तो इसमें ये फर्स्ट होता है 2 माइक्रोन वाला, that is 1 micron, that is 2 mm, 1 mm, and less, that is micron means it is almost less than 1 mm. So it is 600 micron up to 75 micron. These are the different fine soil particles or fine sieves that are used for analysis. Okay, have you got this method? sieve analysis में क्या होता है कि simple, according to your requirement, according to the shape, according to the material soil sample available, we can analyze the soil particles, or we can analyze that soil size, particle distribution. Okay, if the soil has a greater particles of, or the material has greater particles, so we can go for coarser analysis. And if it is soil has a small size, so we can go for fine sieve analysis. Okay, so depending upon the availability, depending upon the availability of material, just according to the size of the sieve is also varies. Okay, so here the coarser grain size analysis. coarser grain में देखो अरेंजमेंट किस तरह से की जाती है। ये ऊपर जो होता है 80 माइक्रोन वाला होता है, उसके बाद 40, 20, then 10 mm and great and the less than 4.75 mm micron sieves are arranged according to their size. Okay, so these are the some important sieve analysis parameters that are used. इस तरह से हम क्या करते हैं, sieve को अरेंज करते हैं, sieve को अरेंज करते हैं एनालिसिस के लिए। ठीक है, तो ये आया ध्यान में आपको। एक मैकेनिकल sieve शेकर होता है, उसमें एक कैप होता है, ये ऊपर वाला, इस तरह से कैप को क्या करते हैं हम फिट कर देते हैं। यहाँ पे आपका रिसीवर होता है। ओके, और इसको एक वाइब्रेटिंग एक्शन की वजह से, वाइब्रेटिंग होने के बाद सारा स्विच क्या होता है, एनालिसिस हो जाता है। तो ये देखो एक्चुअली है दिस इज द मैकेनिकल स्विव शेकर, दिस इज द मैनुअली ऑपरेटेड स्विव शेकर। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे बीएस स्टैंडर्ड्स हर एक का साइज दिया होता है। ठीक है यहाँ पे हर एक का साइज दिया होता है। इस तरह से हम उसको अरेंज करते हैं स्टेक्स में, और स्टेक्स में अरेंज करने के बाद इसको आप क्या करो, रोटेट करो। ठीक है, ये देखो यहाँ पे हैंडल है, हैंडल जिससे घुमाओगे ये क्या होगा, सिविंग एक्शन होगी, मतलब रोटे वाइब्रेटिंग एक्शन होगी। वाइब्रेटिंग एक्शन होने के बाद क्या होगा, सिव एनालिसिस आपका मिल जाएगा। मतलब जो पार्टिकल साइज, मतलब जो सिव है, जो पार्टिकल के, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये होगा मैकेनिकल, मैनुअली सिव एनालिसिस। मैकेनिकल भी होता है, और अनदर होता है वाइब्रेटिंग। वाइब्रेटिंग शिव शेकर में हम क्या करते हैं, यहाँ पे आरपीएम सेट करते हैं 10 मिनट के लिए। ओके, वो आरपीएम सेट करने के बाद उसका एनालिसिस ये क्या होता है, इस तरह से मूव होता है, ऊपर नीचे वाइब्रेटिंग एक्शन होकर इस तरह से सिव एनालिसिस आपको मिल जाएगा कि कौन से फाइन पार्टिकल्स नीचे मिलते हैं। ओके, तो हर एक सिव में आपको हर एक साइज का पार्टिकल, सॉइल पार्टिकल मिल जाएंगे। तो ये होगा आपका सिव एनालिसिस। इसमें सारी डिटेल्स दी है कि 1 mm इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर, सो 1000 माइक्रोमीटर। Okay, 1 mm is equal to 1000 micrometer and 600 micrometer is equal to 0.6 mm। मतलब देखो यहाँ पे 0.6 mm सॉइल आपको 0.6 mm की साइज आपको मिल सकती है। यहाँ पे 0.425 मिल सकती है, यहाँ पे mm साइज आपको मिल सकती है सीव्स की। ओके, कोर्सर ग्रेन का ये देख लिया हमने। उसके बाद ग्रेवल फ्रैक्शन और सैंड फ्रैक्शन। ओके, ग्रेवल फ्रैक्शन क्या होती है, इस तरह से ग्रेवल फ्रैक्शन आपको मिल जाएंगे, और सैंड फ्रैक्शन आपको मिल जाएंगे। कब मिलेंगे, जब व्हेन द साइज इज ग्रेटर देन 4.75 एंड व्हेन द सॉइल इज लेस देन 4.75 वी गेट द सैंड फ्रैक्शंस, एंड हियर इट इज ग्रेवल फ्रैक्शंस। हियर इज एंड हियर आर सम वेट्स। ओके, अब ये होगा आपका एनालिसिस। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबका क्या करेंगे, वेट लेंगे। क्या लेंगे, सब जो भी सैंपल्स होंगे। ओके, यू हैव टू कीप द वेट ऑफ ओनली सॉइल सैंपल, नॉट द
सैंपल ऑफ दैट पैन। ओके, मतलब सपोज पहले आपका W1 हो गया, उसके बाद W2 आ गया, W3 वेट आ गया थर्ड पैन का, फोर्थ पैन का 4 आ गया, W4 आ गया, फिफ्थ पैन का 5th आ गया, और सिक्स्थ पैन का W6 आ गया। ओके, सो दिस वी हैव टू टेक द वेट्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, हाउ मच परसेंटेज इज रिटेन इन दिस पैन, दैट इज पैन हैविंग अ फर्स्ट पैन में कितना परसेंटेज ये हुआ, सेकंड में कितना परसेंटेज हुआ, थर्ड में कितना परसेंटेज सॉइल पार्टिकल हुआ, फोर्थ में कितना परसेंटेज हुआ, सिक्स में कितना, और लास्ट में कितना। तो इसको कैसे निकालेंगे हम, मतलब सपोज दिस इज टोटल वेट। ओके, कंसिडर दिस इज टोटल वेट, वी हैव W, इसको क्या बोलेंगे हम, W बोलेंगे। तो इसमें कितना परसेंटेज सीव रिटेन हुआ ये पहले पैन में, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल वी टेक दी, मतलब टोटल फर्स्ट पैन में टोटल में से कितना परसेंटेज मेंटेन हुआ, so that is P1 is equal to W1 upon W into 100. So we get the percentage of sieve retained in the first pan. Okay, again the percentage of sieve retained in the second pan. What we do, similarly इसमें इसका वेट करो। ओके, टोटल वेट है सॉइल सैंपल का आपके पास, तो टोटल वेट को क्या करो, नीचे डिनोमिनेटर में रख दो, और जो परसेंटेज इसमें कितना वेट है, सपोज कंसिडरिंग में आपको एग्जांपल ही देता हूँ, इसमें टोटल 100 ग्राम वेट है, ठीक है, इसमें कितना है, टोटल 100 ग्राम वेट है। तो पहले में रिटर्न किया इसने 20, ठीक है, पहले में कितना कितना वेट मिला हमको 20। तो हम सिंपल फॉर्मूला क्या करेंगे, 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 क्या है, टोटल वेट है, और ये 100 क्या होता है, हम परसेंटेज में निकाल रहे हैं, तो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है 100। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो कितना परसेंटेज रिटर्न हुआ यहाँ पे, 20% यहाँ पे रिटर्न हुआ। ओके, इफ सपोज हियर इट इज 15, ओके, तो यहाँ पे कितना रिटर्न होगा, 15%। सपोज इट इज हियर 20 अगेन, यहाँ पे 20 रिटर्न हुआ, तो कितना हुआ, 20% हियर, ठीक है। उसके बाद फोर्थ में अगर देखे तो ये हो गया तुम्हारा 15, तो कितना हुआ ये दैट इज योर 15%। ओके, कितना 20 40 40 70, तो ये हो गया तुम्हारा 15, यहाँ पे भी 15 हुआ, और यहाँ पे भी आपने क्या किया 15 हुआ, तो टोटल कितना रिटर्न हुआ 100%। रिमेंबर, आया ध्यान में, हैव यू गॉट दिस, किस तरह से परसेंटेज रिटर्न किया जाता है सीयूज में परसेंटेज किस तरह से रिटर्न किया जाता है, हाउ टू डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ सीयूज रिटर्न इन ईच सीयू। ओके, ये टोटल वेट होता है सॉइल सैंपल्स का वेट करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, how much percentage is written in each sieve, that should be calculated. Here is the percentage of sieve retained, and here it is diagrammatically represent, ठीक है, इसमें यहाँ पे डिटेल डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया है कि उसमें से कुछ पार्ट जो है, मतलब ये टोटल पार्ट है, उसमें से कुछ पार्ट जो है वो यहाँ पे रिटर्न हुआ, परसेंटेज ऑफ sieve retained ऑन अ पैन। सो दैट मींस इन अ फर्स्ट sieve में कितना हुआ, इसका इंफॉर्मेशन है। अगर इसको हम और डिटेल देखेंगे, तो परसेंटेज हमने निकाल लिया, वेट भी निकाल लिया, तो क्यूमुलेटिव एडिंग करनी है। क्यूमुलेटिव परसेंटेज किस तरह से ऐड करोगे, फिर ये क्या करोगे, P1 प्लस P2 सबको क्या करो, ऐड करोगे, P1 प्लस P2 प्लस P4 सबको क्या करो, ऐड कर दो, यू गेट द क्यूमुलेटिव रिटेन परसेंटेज ऑफ द सॉइल। क्यूमुलेटिव एडिंग होती है ना, क्योंकि सॉइल सैंपल हमने लिया था, तो पूरा सॉइल सैंपल था, उसमें हमें पता नहीं था कि कौन सा मतलब कौन सा फाइन है, कौन सा ग्रेड है, तो ओके कौन सा कोर्सर पार्टिकल है, तो वो सब क्या हुए, सॉइल टोटल वेट का ही पार्ट हुए, तो हम उसको क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव ऐड कर देंगे, वी गेट दी क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ द सॉइल इन दिस वे। ओके, इन दिस वे P प्लस P1 प्लस P2 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 अप टू लास्ट, मतलब जो भी लास्ट वाला पार्ट होगा उस तक हम क्या करेंगे, उस तरह से इसका कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। सिर्फ एनालिसिस करते समय ये कैलकुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे उन्होंने दिया है कि दैट क्यूमुलेटिव परसेंटेज एंड इफ यू वांट टू डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ फाइन सॉइल पार्टिकल्स, okay, if you determine the percentage of the fine soil particle of that with respect to this span, so you can simply go for
100 minus C1 plus 100 minus C2, 100 minus C3, 100 minus C2 up to 100 minus C4. You get the percentage of finer soil particles. Okay, तो ये हो गया आपका व्हाट परसेंटेज ऑफ क्यूमुलेटिव रिटर्न. जिस तरह से हमने फाइनर का निकाला उस तरह से हम क्या करेंगे अभी इसका क्यूमुलेटिव ऑफ फॉर कोर्सर एंड फाइनर. तो इस तरह से किया जाता है कि जो भी W मतलब जो भी वेट्स होते हैं वो नीचे विच इज बेस्ड ऑन द 4.75 based on 4.75 micron, that finer particles get the finer particle, the percentage of finer particle and cumulative percent weight of the coarser particle should be maintained. Here are some, here this table shows the some ISU's particle size along with the observations that are made. Okay, for a sheet of sieve analysis. यहाँ पे देखो sieve analysis का percentage निकाला है, पार्टिकल साइज दी है और उसमें मास रिटेन किया गया है, कितना ग्राम मास उसमें रिटेन हुआ है. सो उसके बाद परसेंटेज रिटेन किया है, कितना परसेंट रिटेन हुआ. देखो अभी टोटल क्या है 100 ग्राम, इसमें क्या हुआ कितना परसेंटेज मास रिटेन हुआ है. उसके बाद क्यूमुलेटिव परसेंटेज इन्होंने क्या किया है, क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऐड निकाला है. तो इसमें क्या हुआ देखो 3.3 plus 4.9 gives the answer of 8.2. 8.2 plus 8.5 gives 16.7. 16.7 plus 14 is equal to 30.7. 30.7 plus 60 इसको क्यूमुलेटिव एडिंग कर लिया. तो उसके बाद व्हाट वी डू, वी डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ फाइनर पार्टिकल्स. ओके, दैट इज N. तो टोटल ISU कितना 100 ग्राम, उसमें से हमने क्या माइनस किया, ये जो क्यूमुलेटिव परसेंटेज है, क्यूमुलेटिव परसेंटेज हमने क्या किया माइनस किया. और इस तरह से हमने क्या निकाला परसेंटेज ऑफ क्यूमुलेटिव पार्टिकल्स ऑफ 75. मतलब क्या कि अगर पहले पैन में CU अगर 100 mm का हो तो 100 mm में फाइनर पार्टिकल, परसेंटेज ऑफ फाइनर पार्टिकल कितना है वो. अगर CU 75 mm का है, ओके, पार्टिकल साइज उसमें 75 mm है, तो उसमें फाइन पार्टिकल्स कितना हुआ, दिस मच, दैट इज 100%. नाउ हियर इन दिस केस 19 mm CU है, ओके, साइज उसका 19 mm है, उसने वेट मास उसका कितना है 33 ग्राम है, उसका परसेंटेज कितना रिटेन है 100. ओके, यहाँ पे देखो दी सैंपल नंबर 108 दिया है, मास रिटेन इज 4.75 mm, दैट इज 160 ग्राम. एंड मास ऑफ ड्राई सेल, मतलब जो साइल सैंपल लिया था हमने उसका मास कितना है, दैट इज दी 1000 ग्राम. एंड मास पासिंग थ्रू द 75 माइक्रोन इज 77 ग्राम. ओके, मतलब जो भी माइक्रोन 75 है उसमें से मास कितना माइक्रोन है उसमें से कितना पार्टिकल साइज जा रहा है 77 ग्राम जा रहा है. तो उसके वो जो फॉर्मूला है, ओके, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, by using this technique we have to determine percentage retained in each soil sample, each span or each sieve. okay, each sieve में हमने क्या किया परसेंटेज रिटेन किए. उसके बाद हमने उसका क्यूमुलेटिव एडिशन किया. क्यूमुलेटिव एडिशन करने के बाद उसमें कितना परसेंटेज ऑफ फाइन है, ठीक है, मतलब 19 mm, if there is 19 mm of soil particle, 90 mm size is there, so in that 19 mm soil percentage of fine particle is 96.7. ओके, उसके बाद 100 mm है तो उसमें कितना साइज हुआ 91.8 mm, एंड हियर इट इज 4.75 mm, so the percentage is 83.3%. हैव यू गॉट दिस टेक्निक, मतलब किस तरह से इसका कैलकुलेशन किया जाता है. ठीक है, अब जैसे भी आपको सॉइल सैंपल मिलते हो तो आप इस तरह से इसका कैलकुलेशन करके परसेंटेज रिटेन कितना हुआ बट ईच सीव्स में और उसमें से फाइन पार्टिकल्स का परसेंटेज डिटरमाइन कर सकते हैं. सो दिस टेबल रिप्रेजेंट्स द हाउ टू कैलकुलेट द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन इन ईच सीव्स. ओके, इन ईच ऑब्जर्वेशंस इन्होंने लिए थे, ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे साइज रिटेन की और उसके बाद मास ईच का कैलकुलेट वेट करके. ओके, दिस मास इज शुड बी वेड. ओके, ये मास जो होता है उसको वे करके डिटरमाइन किया जाता है. उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं परसेंटेज ऑफ सीव्स रिटेन, परसेंटेज ऑफ मास रिटेन इन ईच सीव्स एंड परसेंटेज ऑफ final we will determine with the help of this. And here it is the particle size distribution.
ओके, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, इसमें क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन एंड परसेंटेज ऑफ फाइन रिटेन दिखाया गया है। ठीक है, जैसे 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 मतलब क्या होता है कि फाइन पार्टिकल्स वो क्या होते हैं वन बाय उसमें क्यूमुलेटिवली एडिंग उसमें होती रहती है। तो ये होगा तुम्हारा पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, और दिस इज द होल अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल साइज। नाउ in the same way we will discuss today, the next point is consistency of soil particle. Have you got this particle size distribution समझ में आया? फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। आया ध्यान में? पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन सिव एनालिसिस किस तरह से किया जाएगा? कंसिस्टेंसी लिमिट, और कंसिस्टेंसी क्या होती है उसके बारे में हम अभी इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। व्हाई कंसिस्टेंसी ऑफ द सॉइल पार्टिकल इज इंपॉर्टेंट। ओके, कंसिस्टेंसी आपको पता है वर्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंसी? मेंटेन करते हैं। वी नो दैट द सॉइल इज ऑफ डिफरेंट नेचर, कभी सॉइल लूज होती है, कभी फर्म होती है, कभी फ्राइबल होती है, कभी वेरी फर्म होती है। ठीक है, तो उस दैट इज नथिंग बट द कंसिस्टेंसी। ओके, कुछ सॉइल जो लूज सॉइल होती है वो हमें क्या करते हैं, जब हम उसको हाथ में पकड़ते हैं तो वो क्या होती है निकल जाती है, सॉइल पार्टिकल्स क्या होती है निकल जाती है। अगर फ्राइबल होती है तो आपको फील आता है उसका कि फ्राइबल है, क्रम्बल्ड है, ग्रेवल है सॉइल। ओके, तो ये सारी चीजें कंसिस्टेंसी में मोड़ी जाती है। तो कंसिस्टेंसी क्यों होता है कि the at which that the soil get relatively deformed or maybe ruptured. Okay, इसमें क्या होता है जब सॉइल में मॉइस्चर होता है, ओके सॉइल में जब मॉइस्चर होता है तो कितना मॉइस्चर सॉइल में है उसके हिसाब से सॉइल क्या होती है रप्चर होती है। ठीक है, अगर क्ले सॉइल है, क्ले सॉइल में ज्यादा पानी हो तो वो क्या होती है स्टिकी होती है, क्या होती है स्टिकीनेस उसमें आता है। ठीक है, क्ले सॉइल में वाटर नहीं है तो वो क्या होती है मतलब वो क्या बोलते हैं उसको फाइन लगती है, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको इजीली मूवेबल होती है उसमें। ठीक है, तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिटरमाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल का स्टडी करना पड़ता है। वी गो फॉर द कंसिस्टेंसी ऑफ soil. So the consistency means what? It is the relative age of, it is the relative age with which soil can be deformed. Okay, ये क्या होती है एक रिलेटिव चीज होती है, एज होती है जिसमें सॉइल क्या होती है डिफॉर्म होती है। दिस टर्म इज मोस्टली यूज्ड फॉर फाइन ग्रेन सॉइल। ओके, जो भी फाइन ग्रेन सॉइल होती है फॉर विच कंसिस्टेंसी इज रिलेटेड टू अ लार्जर एक्सटेंट ऑफ वाटर कंटेंट। ओके, इट इज जनरली रिलेटेड टू द फाइन ग्रेन सॉइल जो होती है उसके बेसिस पे हम क्या उस पे डिपेंड मतलब उससे रिलेटेड है, क्योंकि क्या होता है उसमें ज्यादा वाटर कंटेंट होता है। तो कंसिस्टेंसी डिनोट डिग्री ऑफ फर्मनेस ऑफ द सॉइल व्हिच मे बी टर्म एज सॉफ्ट, फर्म, स्टिफ और हार्ड। ठीक है, क्या होती है इसमें डिग्री ऑफ फर्मनेस। ओके, कितनी फर्म है ऑफ अ सॉइल व्हिच मे बी सॉफ्ट, व्हिच मे बी टर्म एज सॉफ्ट हो सकती है, फर्म हो सकती है, स्टिफ हो सकती है और हार्ड हो सकती है। तो वो जो टर्म हम डिटरमाइन करते हैं उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ द सॉइल। सो इट इज हियर हाउ मच डिफॉर्मेशन इज देयर एंड वेयर इट इज रप्चर। ठीक है, रप्चर होना मतलब उसमें क्रैक फॉर्मेशन हो जाते हैं, कभी कभी ब्रेक हो जाती है सॉइल में अगर पार्टिकल। तो वो टेस्ट किस तरह से किया जाता है, क्या क्या उसका इंपॉर्टेंस है वो हम अभी ये लेक्चर में देखेंगे। Now generally fine grain soil may be mixed up with the water to form a plastic paste which may molded into many form of pressure. क्या होता है अभी देखो सॉइल पार्टिकल्स जो भी सॉइल फाइन ग्रेन हो अभी, ओके जो भी फाइन ग्रेन पार्टिकल हो तो वो फाइन ग्रेन पार्टिकल में हम क्या करते हैं वाटर मिक्स करते हैं। वाटर मिक्स करने के बाद हमें जो वाटर मिक्स करने के बाद जो भी प्लास्टिक फॉर्म पेस्ट फॉर्म होती है दैट इज मोल्डेड इनटू एनी प्रेशर। जो भी पेस्ट हमें मिलती है उसे प्लास्टिक नेचर में, तो हम उसको किस पे भी मोल्ड कर सकते हैं और मोल्ड करने के बाद हम उसको क्या करेंगे डिफरेंट शेप दे सकते हैं बाय अप्लाइंग प्रेशर। एडिंग वाटर टू द एडिशन ऑफ वाटर रिड्यूस द कोहेजन मेकिंग द सॉइल स्टिल इजियर टू मोल्ड। ओके, क्या होता है एडिशन टू वाटर रिड्यूस द कोहेजन, जितना आप वाटर ऐड करोगे उसमें से क्या होता है कोहेजन ऐड होगा, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स क्या होगा कम होगा। ठीक है, मतलब दो सॉइल पार्टिकल्स हैं, क्ले सॉइल पार्टिकल कंसिडर करो, आप जितना पानी उसमें ऐड करोगे सिंपल है, पानी जितना आप उसमें ऐड करोगे तो क्या होगा सॉइल कैसी होगी लिक्विड होते जाएगी। ओके, मतलब क्या होगा उसमें जो कोहेजन फोर्स होगा वो क्या होगा कम होगा। ओके, एंड दैट इज इजीली मोल्डेबल।
क्या होगा, दैट इज इजीली मोल्डेबल होता है। फर्दर द एडिशन ऑफ वाटर रिड्यूसेस द कोहेजन अंटिल द मटेरियल नो लॉन्गर रिटेन इट्स शेप अंडर इट्स ओन वेट बट फ्लोज एज अ लिक्विड। मतलब आप जितना ज्यादा पानी ऐड करोगे तो क्या होगा जो सॉइल मतलब जो भी सॉइल होगी फाइन, वो सॉइल क्या होगी, एज अ लिक्विड फ्लो होगी। ठीक है ना, जितना पानी ऐड करोगे आप इमेजिन कर सकते हो, आप क्ले सॉइल लो, उसमें पानी ऐड करो और उसमें क्ले पानी ऐड करते जाओ, आपको एक लिक्विड मिलेगा। ओके, मतलब सेमी लिक्विड में रहेगा, तो वो लिक्विड क्या करेगा, फ्लो होता जाएगा। ओके, ये होता है, ये करता है, कंसिस्टेंसी डिपेंड करता है। सो इनफ वाटर में बी एडेड अंटिल द सॉइल ग्रेन आर डिस्पर्स इन अ सस्पेंशन। ओके, तो इस तरह से क्या जितना इनफ वाटर आप डालोगे तो सॉइल पार्टिकल क्या हो गया, सस्पेंडेड हो गया वो सॉइल, वो वाटर सॉल्यूशन में, और वो सॉल्यूशन में, एंड दैट इज डिस्पर्स्ड। ओके, नाउ वाटर इज इवेपोरेटेड फ्रॉम ईच सच अ सस्पेंशन, the soil passes through a various stages and states of consistency. Okay, आप कंटिन्यूअसली उसको अभी क्या करो, आपने क्या किया, सॉल्यूशन लिया, वो मतलब पानी सॉइल ली, उसमें पानी ऐड करते गए, वो सॉइल लिक्विड हो गया। अभी आपने उसको उसमें से क्या किया, पानी इवेपोरेट कर लिया। क्या हुआ, पानी इवेपोरेट कर लिया, तो उस स्टेट हुआ, थ्रू दैट स्टेट दिस सॉइल पासेस थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ कंसिस्टेंसी। उसमें से क्या होता है, सॉइल जो है वो वेरियस स्टेजेस में से क्या होती है, पास होती है कंसिस्टेंसी की। तो वो स्टेजेस क्या होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, दैट इज द स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी। सो नाउ इन अ 1911 the Swedish agriculturist, that is Atterberg, divide that entire range of the liquid to solid into 4 stages. Okay, Atterberg ने 4 stages साथ में डिवाइड कर ली। फर्स्ट इज लिक्विड लिमिट होती है, उसके बाद प्लास्टिक लिमिट, सेमी सॉलिड लिमिट एंड सॉलिड लिमिट। ओके, these are the 4 limits, okay, that he, or these are the 4 stages he states and he divides, okay, according to his study, according to his experiment. Now he set an arbitrary limit known as consistency limit. Okay, एक उसमें क्या किया, एक arbitrary limit फिक्स कर दी, उसको हम बोलते हैं consistency limit, और अटरबर्ग लिमिट भी उसे कहा जाता है। ठीक है, उसे अटरबर्ग लिमिट भी कहा जाता है। फॉर दिस द डिवीजन इन टर्म्स ऑफ वाटर लिमिट। ओके, और उसके लिए उसने क्या किया, मतलब ये जो प्लास्टिक लिमिट है, लिक्विड लिमिट है, सॉलिड सेमी सॉलिड, किसके बेसिस पे किया उसने, बेस्ड ऑन द वाटर कंटेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉइल। ओके, मतलब जो स्टेट में वाटर कंटेंट होगा उसके हिसाब से इसने क्या किया, एक आर्बिट्ररी लिमिट फिक्स कर दी, उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी लिमिट। Okay, and that is completely based on the water content of that each stage. Now this consistency limit at which the soil passes through from one state to another state. ठीक है, मतलब क्या होगा, देखो अभी पहले लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड के बाद क्या होगा, लिक्विड में से लिक्विड स्टेट है, लिक्विड स्टेट में से आपने पानी निकाल लिया, इवेपोरेशन हो गया सॉइल का, तो उसके बाद वो स्टेट में प्लास्टिक स्टेट में चली जाएगी। ओके, प्लास्टिक और तुम हीट करो तो वो सेमी सॉलिड में चली जाएगी। ठीक है, सेमी सॉलिड में चली जाएगी, और तुम हीट करो तो वो कंप्लीटली चली जाएगी सॉलिड स्टेट में। कंप्लीटली सॉलिड स्टेट मतलब क्या, उसमें मॉइस्चर नहीं रहेगा, ओनली सॉइल पार्टिकल्स आर देयर, दैट इज नथिंग बट सॉलिड स्टेट। ओके, तो उस तरह से इन्होंने क्या किया, अटरबर्ग ने ये डिफरेंट लिमिट्स क्या की, डिफरेंशिएट किए, और उसका स्टडी करके उस पे आर्बिट्ररी 4 लिमिट्स कंसीडर कर ली। तो ये देखो, ये अटरबर्ग लिमिट्स बोलते हैं उसको, इसको कंसिस्टेंसी लिमिट भी बोलते हैं, और इसमें वाटर कंटेंट के बेसिस पे इन्होंने क्या किया, 4 स्टेट में उसको कंसीडर कर लिया, लिक्विड स्टेट, प्लास्टिक स्टेट, सेमी सॉलिड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट। Here are these 4 stages. Okay, अगर इसमें क्या होता है, वॉल्यूम, सपोज इनिशियली वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम और वाटर कंटेंट के बेसिस पे ये लिमिट्स परसेंट। Figure shows that this consistency appropriate consistency limit, Atterberg limit, which are most useful for engineering purposes are liquid. Okay, Atterberg की लिमिट 4 प्लास्टिक लिमिट्स होती है, श्रिंकेज लिमिट, ये 3 इंपॉर्टेंट, एंड दिस लिमिट्स आर एक्सप्रेस एज अ परसेंट ऑफ वाटर कंटेंट। ओके, ये जो एक्सप्रेस करते हैं इसमें हम क्या करते हैं, परसेंटेज ऑफ वाटर कंटेंट इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। ओके, तो 1 बाय 1 देखेंगे कि स्टेट वाटर कंटेंट के हिसाब से। लिक्विड लिमिट, ओके, अगर सपोज द सॉलिड when liquid state changes to plastic state, okay, when liquid state changes to plastic state and it goes through the liquid limit. Okay, इसके बीच में कौन सी लिमिट होती है,
लिक्विड लिमिट, अगर प्लास्टिक लिमिट प्लास्टिक स्टेट से सेमी सॉलिड स्टेट, तो वहां पे प्लास्टिक लिमिट टर्म यूज करते हैं, और सेमी सॉलिड से सॉलिड के कन्वर्ट होते तक वहां पे श्रिंकेज लिमिट लगाई जाती है, और श्रिंकेज लिमिट वहां पे कंसीडर करते हैं। ओके, बेस्ड ऑन द वाटर कंटेंट, यहाँ पे 0 वाटर कंटेंट होता है, 0% वाटर यहाँ पे एक्वायर होता है। तो ये फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल, देखो ये सैचुरेटेड फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल है, इसमें सेमी सॉलिड स्टेट है। ओके, यहाँ पे 0% है, तो मतलब लिक्विड स्टेट अगर प्लास्टिक स्टेट से जा रही है तो वहां पे लिक्विड लिमिट आती है। लिक्विड लिमिट प्लास्टिक से सेमी सॉलिड जाओ तो प्लास्टिक लिमिट कंसीडर करते हैं, और सेमी सॉलिड से मतलब ओवन ड्राई और सॉलिड तक जाओ तो वहां पे श्रिंकेज लिमिट कंसीडर करते हैं। तो अभी लिक्विड लिमिट क्या होता है, ठीक है, लिक्विड लिमिट क्या है, 1 बाय 1 है सारी टर्म्स हम देख लेंगे कि लिक्विड लिमिट किस तरह से वर्क करती है। लिक्विड लिमिट इज द वाटर कंटेंट करस्पॉन्डिंग टू द आर्बिट्ररी लिमिट बिटवीन द लिक्विड एंड प्लास्टिक स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ द सॉइल, मतलब इट इज अ स्टेट बिटवीन द वाटर कंटेंट बिटवीन द लिक्विड एंड द प्लास्टिक स्टेट। ओके, प्लास्टिक और लिक्विड स्टेट दोनों की स्टेट में जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वहां पे लिक्विड लिमिट कंसीडर की जाती है, एंड इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच द सॉइल इज स्टिल इन लिक्विड स्टेट, ओके, बट हैज अ स्मॉल शेयरिंग स्ट्रेंथ अगेंस्ट द फ्लोइंग विच कैन बी मेजर्ड बाय स्टैंडर्ड अवेलेबल मीन्स। मतलब क्या होता है, यहाँ पे सॉइल जो होती है वो लिक्विड स्टेट में होती है। कैसी होती है सॉइल, लिक्विड में ही होती है, बट उसमें जो मतलब उसका जो शेयरिंग स्ट्रेंथ है वो हम मेजर कर सकते हैं, उसका जो एरिया है, उसका जो शेयर स्ट्रेंथ है, ओके, एबिलिटी ऑफ स्ट्रेंथ, उसकी हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं बाय अवेलेबल स्टैंडर्ड में। तो देखो अभी लिक्विड लिमिट के इसमें नो रेजिस्टेंस होता है, ओके, इसमें क्या होता है, नो रेजिस्टेंस टू फ्लो, सॉइल इज इन लिक्विड स्टेट, नो शेयर स्ट्रेंथ एंड द शेयर स्ट्रेंथ इज 0। उसमें क्या होती है, शेयर स्ट्रेंथ जो होती है 0। तो इस तरह से मतलब सॉइल लिक्विड में ही होती है और वो उसमें शेयर स्ट्रेंथ 0 होती है, तो उस तरह की सॉइल का हम बोलते हैं दैट इज लिक्विड स्टेट। एंड स्टीपर सॉइल, ओके, स्टीपर सॉइल में क्या होता है, इट स्टार्ट डेवलपिंग शेयर रेजिस्टेंस, इसमें क्या होता है, शेयर रेजिस्टेंस जो होता है वो डेवलप्ड होने में शुरुआत हो जाती है स्टीपर सॉइल में। विथ रेफरेंस टू द स्टैंडर्ड liquid limit device, it is defined as the minimum water content at which the part of soil cut by the grooves of standard dimensions with will flow together for a distance of 12 mm, that is 1/2 inch under an impact of 25 bowls in a device, okay, 25 bowls in a device. So this is liquid limit state. अभी देखो लिक्विड लिमिट डिटरमाइन करने के लिए we use the Casagrande apparatus, okay, in this state of the soil that offers no resistance to the flow। देखो अभी आपको लिक्विड लिमिट में ये सॉइल इस तरह से दिख जाएगी, तो एक Casagrande apparatus होगा, ओके, इसमें एक बाउल होता है, ठीक है, देखो ये बाउल आपको दिख रहा है, ये बाउल है, इसका ये यहाँ पे एक काउंटर होता है और यहाँ पे एक हैंडल होता है, ओके, यहाँ पे काउंटर होता है और यहाँ पे क्या होता है, हैंडल होता है, ठीक है, ये हैंडल, ये देखो ये हैंडल है। तो ये हैंडल क्या करते हैं, मतलब हम क्या करते हैं, जो भी सैंपल होगा उसको हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको इस बाउल में प्लेस कर देंगे, वी हैव टू प्लेस दैट सैंपल इन अ बाउल इन अ सच अ वे, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से इस बाउल में रख देंगे, ठीक है, उसको हाफ इंचेस में हम उसको मतलब डिवाइड कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये हैंडल को हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, ओके, हैंडल को हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, ठीक है, रोटेट करने के बाद क्या होगा, कितने रोटेशन दिए, जैसे ही तुम रोटेशन करोगे तो ये क्या होगा, ये बाउल उठ के ऊपर नीचे आएगा, मतलब टकिंग एक्शन होगी, मतलब ये ऊपर नीचे होगा, ठीक है, ये क्या होगा, ऊपर नीचे होगा, इस तरह से ऊपर नीचे होने के बाद क्या होगा, ये जो प्लास्टिक, ये जो सॉइल है ये क्या होगी, नीचे नीचे आती जाएगी, ठीक है, नीचे नीचे आती जाएगी, और मतलब एट अ सर्टन बाउल्स, कितना बाउल्स बोला था उन्होंने, बाउल्स ऑफ 20 bowls, okay, impact of 20 bowls, after impact of 20 bowls that soil gets stick together, okay, that comes close together, so this determines the plastic limit or sorry liquid limit of the soil, okay। तो एक Casagrande apparatus है, that is more useful for generally यूज किया जाता है। यहाँ पे नीचे जो होता है, ये जो है, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये रबर का प्लेटफॉर्म होता है, ओके, तो जैसे ही आप ये हैंडल रोटेट करोगे इस तरह से,
तो ये क्या होता है, जैसे हैंडल रोटेट करोगे ये ऊपर उठ के नीचे जाएगा, और वहां पे जैसे टकिंग एक्शन होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, सॉइल सैंपल्स क्या होगी, पास में आ सकते हैं, पास में आते हैं। पास में आने के बाद हम उसका रीडिंग्स नोट करते हैं और उसके बाद उसका प्लास्टिक लिमिट बता देते हैं कितना परसेंटेज उसमें मॉइस्चर है। तो कैसा कैंडस एपरेटस लिक्विड लिमिट के लिए यूज किया जाता है, रिमेंबर दिस मे बी अ क्वेश्चन फॉर द एमसीक्यू एग्जाम, एमसीक्यू in an examination. Okay, so take 120 gram of air dried soil after passing through a 425 micro sieves. Okay, जो माइक्रोन सीव्स मतलब 120 ग्राम आपको सॉइल लेनी है, उसमें उसको ओवन ड्राई करना है, ड्राइड करना है, और दैट पासिंग थ्रू द सीव्स ऑफ 425 माइक्रोन आर्बिटरी मिक्सचर, मिक्स कंटेन एन अमाउंट ऑफ वाटर एंड मेक इट पेस्ट। एक मतलब आर्बिटरी आप उसमें वाटर मिक्स कीजिए, पुट दैट पैट in a brass cup and make a V shape grooves using the ग्रोविंग टूल। ओके, ग्रोविंग टूल्स यूज करके आप क्या करने का है, उसको एक वी शेप बना, वी शेप के वी शेप में उसको प्लेस कर दीजिए इस तरह से। ठीक है, ये वी शेप है एक्चुअली, इस तरह से इसको प्लेस कर दीजिए। उसके बाद कीजिए, गिव द ब्लोज एट अ स्पीड ऑफ 2 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड टिल द ग्रूव क्लोज। ओके, मतलब 2 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड से आपको क्या करना है, वो ब्लो जो है इसको देखो, ये ब्लो को क्या करने का है, आपको रोटेट करने का है। क्या करने का है, रोटेट करना। अभी देखो ये जो है इस ये जो ग्रूव है, इसको क्या करो, अभी वी शेप में इस तरह से इसको मार्क कर दो। ओके, उसके बाद उन्होंने बोला है काउंट द नंबर ऑफ बाउल्स एट द एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट। ओके, नंबर ऑफ बाउल्स आपको एक्सपेरिमेंट एट द एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट काउंट करने। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है, यहाँ पे दिस पोर्शन वी गेट द नंबर ऑफ बाउल्स, मतलब कितने नंबर ऑफ बाउल्स, मतलब कितना नंबर ऑफ रोटेशंस आपने दिए, यहाँ पे काउंट करो। उसके बाद काउंट करो, टेक द सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉइल फ्रॉम द कप एंड डिटरमाइन वाटर कंटेंट। अभी उसमें से देखो, बाउल देने के बाद आप क्या करने का, वो जो सैंपल है उसमें से आप क्या करो, सॉइल सैंपल निकालो और उसका मॉइस्चर कंटेंट निकालो। टेक एटलीस्ट 5 नंबर ऑफ ट्रायल्स विथ वेरिंग नंबर ऑफ बाउल्स फ्रॉम 15 to 35। ओके, वेरिंग नंबर ऑफ बाउल्स मतलब क्या करो, सपोज ध्यान में आया ना आपको, एक आर्बिटरी ड्राइड सॉइल लो, उसमें आर्बिटरी वाटर मिक्स करो और उसको इस तरह से ये बाउल ब्रास मेटल में पुट कर दो, और ये इसकी वजह से ग्रूव्स से डिफरेंशिएट कर दो, और इसमें बाउल्स दो, रोटेशंस दो, यू हैव टू रोटेट इट। ओके, टेक द 5 to 7 ट्रायल्स। ओके, ज्यादा से ज्यादा 5 ट्रायल्स लो, 5 ट्रायल्स लो। अब मतलब वेरिएबल बाउल्स के लिए 15 ट्रायल, मतलब 15 बाउल्स लो, 30 बाउल्स लो, ओके, 20 बाउल्स लो, 25 बाउल्स लो और 30 बाउल्स, मतलब ये इस तरह से आप क्या करो, बाउल्स लो और उसका मॉइस्चर कंटेंट निकाल दो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, एवरेज मॉइस्चर कंटेंट मिलेगा। द करस्पॉन्डिंग वाटर कंटेंट एट 25th बाउल इज टेकन एज अ लिक्विड लिमिट। ठीक है, मतलब 25th बाउल को जो भी वाटर कंटेंट होगा वो होगा आपका लिक्विड लिमिट, मतलब एट दैट, इन दैट स्टेट द वाटर इज प्रेजेंट एट दैट, इन दैट सॉइल, इन दैट एक्सपेरिमेंट। ओके, तो ये होता है लिक्विड लिमिट एप्रेसेंस, ये डिटर्मिनेशन ऑफ लिक्विड लिमिट है। ये फ्लो कर्व होता है, इसमें वाटर कंटेंट और नंबर ऑफ बाउल्स। तो उन्होंने जैसे कि 25 पे सारे पॉइंट्स क्या करो, प्लॉट करो, और 25 बाउल्स पे जो जो भी रीडिंग आएगा, ओके, जो भी वहां पे इंटरसेक्ट होगा पॉइंट, तो वो इंटरसेक्ट वो होगा आपका वाटर, ये होगा आपका लिक्विड लिमिट में वाटर कंटेंट। ठीक है, देन वी गो फॉर प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिक लिमिट क्या होता है, इट इज अ वाटर कंटेंट करस्पॉन्डिंग टू एन आर्बिटरी लिमिट बिटवीन द प्लास्टिक लिमिट एंड सेमी सॉलिड state of consistency of the soil, and it is defined as minimum water content at which soil will just begin to crumble when rolled into thread approximately 3 mm in diameter। अभी प्लास्टिक लिमिट में क्या होता है, प्लास्टिक लिमिट क्या होता है कि सॉइल में, सॉइल जो होती है हम उसको रोल्ड कर सकते हैं। ओके, सॉइल क्या होती है, क्रम्बल्ड फॉर्मेशन होती है, और उसको हम क्या कर सकते हैं, रोल्ड कर सकते हैं। व्हाट वी डू, वी हैव टू रोल्ड इट एंड अप्रोक्सीमेटली 3 mm थ्रेड डायमीटर। ठीक है, 3 mm थ्रेड डायमीटर में। तो इसके लिए ये एसेसरीज लगती है आपको, एक बीकर लगता है, एक मेजरिंग सिलेंडर लगता है, दिस इज द प्लेट एंड दिस इज कंटेनर एंड दिस इज बाउल। ओके, so what we do in a shrinkage plastic limit,
प्लास्टिक लिमिट में क्या करते हैं हम कि सॉइल को इस तरह से हम क्या करते हैं 3 mm के डायमीटर में हम उसको क्या करते हैं कम मतलब रोल करते हैं। ओके, रोल आउट करने के बाद क्या होगा, जैसे ही रोल कर 3 mm साइज का रोल हुआ तो वहां पे आपको इस तरह से क्रैकिंग्स मिलेगी। ठीक है, इस तरह से क्या है मिलेगी, क्रैकिंग्स मिलेगी। जैसे ही क्रैकिंग्स आपको मिलने लगेगी तो वो आपको प्लास्टिक लिमिट कंसिडर की जाती है। तो अभी इसको डिटरमाइन कैसे करते हैं देखो, उसी तरह हमने क्या किया, 15 ग्राम सॉइल सैंपल लिए एयर ड्राइड। ओके, उसको 425 माइक्रोन सी में से पास करके हमने 15 ग्राम सैंपल लिया, आर्बिटरी मिक्सचर किया, वाटर उसमें मिक्स किया एंड मेक अ सॉइल make in a soil ball, roll the soil ball on the glass plate with the palm। ओके, अभी क्या किया, वो मिक्सर है, ये जो मिक्सचर है इस तरह से देखो, इस तरह से हमने क्या किया, उसको रोल किया। ठीक है, रोल किया, उसके बाद हुआ मेक अ थ्रेड टिल इट अटेन अ थिकनेस ऑफ 3 mm। ठीक है, उसका अटेन 3 mm थिकनेस अटेन करने उसको रोल करते हैं। इफ द थ्रेड क्रम्बल एट अ 3 mm थिक देन इट टेक प्लस इट टेक देन टेक सैंपल टू डिटरमाइन वाटर कंटेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो भी थ्रेड होता है अगर थ्रेड उसमें ब्रेक हो गया, ओके, थ्रेड अगर क्रम्बल हो गया तो वो आप क्या कर सकते हो, उसको वाटर मॉइस्चर कंटेंट के लिए मॉइस्चर कंटेंट उसका निकाल लो एंड द करस्पॉन्डिंग वाटर कंटेंट इज टेकन एज प्लास्टिक लिमिट। उसका और उसको क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग वाटर टेबल, हम उसका मॉइस्चर कंटेंट निकाल देते हैं। तो ठीक है, ये क्रम्बल्ड हो गया ना, तो इसको आप क्या करो, इसका मॉइस्चर कंटेंट निकाल दो। ठीक है, यू विल गेट द प्लास्टिक लिमिट ऑफ द प्लास्टिक स्टेट, that is the plastic soil can be molded into different shape without rupturing because of the plasticity। मतलब soil को आप किस तरह भी मोल्ड कर सकते हो विदाउट रप्चरिंग। तो वो जो स्टेट होती है वो क्या होती है, आपकी प्लास्टिक स्टेट होती है, उसको बोलते हैं प्लास्टिक लिमिट, वी कॉल इट एज प्लास्टिक लिमिट। नाउ नेक्स्ट इज श्रिंकेज लिमिट। ओके, अभी क्या है, श्रिंकेज लिमिट में क्या होता है, इट इज अ ट्रांजिशन स्पेस बिटवीन व्हाट दी सेमी सॉलिड टू सॉलिड। मतलब क्या, सॉइल जो मतलब जो भी सैंपल होगा, जो भी मिक्सचर होगा, उसको हम क्या करेंगे, सेमी सॉलिड में से सॉलिड में ट्रांसफर करेंगे। तो उसके उसमें हम कौन सी लिमिट यूज करते हैं, श्रिंकेज लिमिट। ओके, सो श्रिंकेज लिमिट इज डिफाइंड एज द maximum water content at which a reduction in water content will not cause a decrease in volume of the soil mass, or it is the lowest water content at which soil can still completely saturated। इसमें क्या होता है, soil completely saturated हो जाती है, मतलब water निकल जाता है and there is decrease in volume of soil mass। इसमें क्या होता है, soil mass क्या होता है, decrease हो जाता है। okay, so this is what shrinkage limit। shrinkage limit इस तरह से डिटरमाइन की जाती है, उसके लिए एक्सेसरीज होती है, बाउल होती है, मेजरिंग सिलेंडर होता है, this is one bottle is there and here is the क्या बोलते हैं इसको हम, trowels। okay, and this is what the small bowls are there। okay, crucibles, this is one crucible is there। now here the determination process include that take the 30 gram of air dried passing through 425 micron। okay, 30 ग्राम सॉइल सैंपल लो, जो भी जो 425 माइक्रोन से उससे पास होते हैं। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या, मिक्स soil is mixed with sufficient quantity of water so that it may flow। okay, अभी इसमें वाटर किस तरह से ऐड करना है कि जैसे कि सॉइल में दैट फ्लो। ओके, सॉइल क्या हो सकती है, फ्लो हो सकती है, इतना सफिशिएंट वाटर आप इसमें ऐड करो। फिल द सॉइल, मिक्स इन अ डिश। ओके, मिक्स इन अ डिश एंड टेक अ वेट ऑफ द डिश। क्या करो, जो भी सॉइल आपने ली उसको एक डिश में लो और उसमें मिक्स करो और उसका वेट लो। The soil pat is allowed to dry in a air till it color of pat changes from dark to light। मतलब जो भी पैट होगा सॉइल का, ओके, जो भी सॉइल का पैट होगा उसको अलो करो एयर में, ड्राई करने के लिए एयर में, जो कि उसका चेंज हो जाएगा डार्क से लाइट में। क्या होगा, डार्क से लाइट में जो उसका कलर क्या होगा, चेंज होगा। द डिश इज देन प्लेस ऑन अ ओवन एट अ डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस टिल इट अटेन अ कांस्टेंट वेट। ओके, उस मतलब उसको ओवन में रखो 110 डिग्री सेल्सियस पे, जब तक उसका कांस्टेंट वेट उसको अटेन नहीं हो जाता। तो श्रिंकिंग डिश इज वेटेड एंड विद द ड्राई सॉइल एंड ड्राई वेट ऑफ द सॉइल इज डिटरमाइंड। वॉल्यूम ऑफ द ड्राई सॉइल पैट इज डिटरमाइंड बाय द मर्क्यूरी डिस्प्लेसमेंट मेथड। ठीक है, अगर मर्क्यूरी डिस्प्लेसमेंट मेथड से हम क्या कर सकते हैं, वेट सॉइल का
ड्राई सॉइल का वेट डिटरमाइन कर, वॉल्यूम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये हो गई तुम्हारी श्रिंकेज लिमिट। नाउ देयर आर 3 रेंजेस ऑफ कंसिस्टेंसी विद इन विच सॉइल इज एग्जिस्टेबल। प्लास्टिक प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड एज प्लास्टिक रेंज एंड इट इज इंडिकेटिव बाय प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ओके, मतलब ये जो कंसिस्टेंसी में फेजेस चेंज होते हैं एग्जिबिट इनटू द प्लास्टिक प्रॉपर्टीज व्हिच इज कॉल्ड एज प्लास्टिक रेंज। तो इसको हम इंडिकेट करते हैं बाय प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ओके, तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द न्यूमेरिकल डिफरेंस बिटवीन द लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, मतलब सिंपल है, plasticity index, if you want to determine plasticity index, so it will be determined by taking the difference of liquid limit minus plastic limit. ये दोनों का difference ले लो, आपको मिलेगा plasticity index. And in case of the sandy soil, plastic limit should be determined first. sandy soil के केस में आपको plastic limit पहले determine करनी, उसके बाद plasticity क्या होती है? property of the soil which allow it to deform rapidly without rupture, without इलास्टिक रिबाउंड एंड विदाउट वॉल्यूम चेंज। मतलब क्या होता है प्लास्टिसिटी में? क्या होता है, जो भी सॉइल होती है, ओके, एक प्रॉपर्टी है इसमें, सॉइल क्या होती है? डिफॉर्म होती है, रैपिडली डिफॉर्म हो सकती है। ओके, विदाउट रप्चर, मतलब रप्चर नहीं आता उसमें, क्रैक फॉर्मेशन नहीं होता है। इलास्टिसिटी, इलास्टिक रिबाउंड, मतलब क्या? इलास्टिक रिबाउंड कैसे कि जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू टेक द रबर, इफ यू रबर स्ट्रेच इट, so it will ultimately occupy its original position. So now this type of case not without elastic nature, okay, and without volume change means whatever volume is there, that volume is changed. That is nothing but the plasticity of the soil. And here consistency index, and consistency index, or it is the relative index, that is defined as the ratio of liquid limit minus natural water content to the ratio of plasticity index of the soil. ओके, इस ये क्या है? एक रेशियो है, इसका डिफरेंस ले लो लिक्विड लिमिट और नेचुरल वाटर का, और उसमें उसको डिवाइड करो प्लास्टिसिटी इंडेक्स से, तो आपको क्या मिलेगा? कंसिस्टेंसी इंडेक्स आपको मिल जाएगा। उसी तरह लिक्विडिटी इंडेक्स भी निकला जाता है। इट इज डिफरेंस बिटवीन दी, जनरली एक्सप्रेस इन परसेंटेज, ओके, this is expressed in a percentage, and which is difference between the natural water content and the plastic water content at plastic limit divided by plasticity index. So that is your what? Liquidity index. So these are this curve shows the different number of bowls as we see in the कैसा कंटेंट apparatus, लिक्विड लिमिट apparatus. तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप? इसका मॉइस्चर कंटेंट डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, तो लिक्विड लिमिट में क्या होता है कि बॉइल्स, मतलब कितने 25 बाउल्स पे आपको क्या करना है? मॉइस्चर कंटेंट कितना है ये डिटरमाइन करना है। कैसे करोगे? पहले आप 10, 15, 20 नंबर ऑफ बाउल्स पे आप क्या करो? रीडिंग्स ले लो, उसको यहाँ पे प्लॉट कर दो, और फिर 25 बाउल्स पे जो भी मॉइस्चर कंटेंट आपको मिलेगा वो होगा वो प्लास्टिक लिमिट का मॉइस्चर कंटेंट। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट techniques, or these are the different methods that we have to use for determining the liquid limit, plastic limit, liquid limit, plastic limit and shrinkage limit of the soil particles. Okay, तो ये थी आज के लेक्चर्स की डिटेल्स, जो आज का पॉइंट्स आपने किए हो गया या नहीं किए ये प्रैक्टिकल्स in soil mechanics? Have you completed this all practicals in soil mechanics? Little bit, sir. Not